Hello and welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In the Capsules of GPB video series, this is part 5. The topics I am going to cover here are the scientists, cytogenetics, genetics, breeding, seed technology, biotechnology, economic botany, questions from particular topic, current affairs in agriculture, then differences and one particular diagram. Here, 5 questions will be covered under each topic. So, let's take the first section, that is scientists. In this session, we are taking history of human chromosome identification. In 1879, Arnold, who first visualized the human chromosome. In 1888, Waldier, the word chromosome coined by this particular person, which where the chroma means color and soma means body. In 1882, Fleming or Walther Fleming, he gave 20 to 28 chromosomes in cells of cornea. That means he observed 20 to 28 chromosomes in the cornea of eye. 1921, T.S. Painter, 48 human chromosomes, X and Y chromosomes, he observed. Then in 1956, Tijo and Levin gave 46 human chromosomes, that is hereditas. That means the Tijo and Levin experiments are true and human are having 46 chromosomes. In 1959, Legion gave trisomy, that is 21 chromosome Down's syndrome, which appear at 21st chromosome and gives trisomy condition. That means Down syndrome is the result of trisomy condition at chromosome 21. In 1960, Denver gave chromosome numbered. He gave the chromosome numbers based on their size. In 1963, London gave chromosome grouping from A to G. In 1966, Chicago gave big chromosome syndromes term. Then in 1971, Paris. In 1976, Mexico, and 1978, Stockholm gave chromosome banding techniques. In 1995, ISCN, that is International System for Human Cytogenetic Nomenclature, was given by different scientists. Coming to a particular topic, that is first one is genetics. The first question is, interferons are glycoproteins which stimulate the synthesis of antiviral protein. This question is very important because in the image of COVID-19, as it is a viral disease, interferons play a very important role in order to avoid the virus. So, I repeat the question once again. Interferons are glycoproteins which stimulate the synthesis of dash proteins. It may be antibacterial, antifungal, like that. Antiviral is the best option. Evenness in the distribution of species is measured when we use dash. The answer is Simpson's index. Now we shall see two important definitions. One is penetrance and one is expressivity. First, I shall read the definition of penetrance. Penetrance means the frequency with which a gene produces a phenotype or visible effect in an individual which carry it is known as penetrance. I repeat, the frequency with which a gene produces a phenotypic or visible effect in the individual which carry it. In other words, it refers to the proportion of individuals which exhibit phenotypic effect of a species gene carrying by them. In general, genes express themselves in all the individuals in which they are present in at appropriate genotype is penetrance. It indicates the number of individuals that give the expected phenotype to any degree. इसका मतलब होता है पेनेट्रेंस का मीनिंग है कि फिनोटिपिक इफेक्ट एक अगर पॉपुलेशन है उसमें फिनोटिपिक इफेक्ट दिख रहा है, दैट इज पेनेट्रेंस. एक्सप्रेसिविटी का डेफिनेशन बताती हूँ. द डिग्री ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए पेनेट्रेंट जीन इज कॉल्ड एक्सप्रेसिविटी. मतलब एक्सप्रेसिविटी में एक जीन के बारे में बात कर रहे हैं. दैट मीन्स हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हैविंग दैट पर्टिकुलर जीन एंड कुड एबल टू एक्सप्रेस इट्स सेल्फ.
इन अदर वर्ड्स द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप, मतलब वो पर्टिकुलर जीन जितने भी पर्सनस में है वो आइडेंटिकल फिनोटाइप दिखा रहा है एट पॉपुलेशन लेवल, दैट इज एक्सप्रेसिविटी। तो मैं एक बार और पढ़ती हूँ। The ability of a gene to produce identical phenotypes in all the individuals carrying it in the appropriate genotype. Many genes have incomplete expressivity while wild alleles are buffered against such variation. मतलब वाइल्ड टाइप में ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेसिविटी आपको मिलेगा। मल्टीपल अलेल्स कैन बी डिफाइंड एज, तो थर्ड डेफिनेशन है मल्टीपल अलेल का डेफिनेशन। यहाँ मल्टीपल अलेल होता है सीरीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ ए जीन situated at the same locus on homologous chromosome and affecting same character। एक ही कैरेक्टर के लिए ये मल्टीपल अलेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक ही जीन में बैठे रहते हैं, दैट मीन्स एक लोसाई पे, मतलब एक जीन के लिए कोड करते हैं, situated at the same locus of homologous chromosome। साइटोजेनेटिक्स टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस है एपी एलेल्स, एपीजीनोम, एपीजेनेटिक्स। ये तीन टर्म्स अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एपी अलील्स होता है सेम डीएनए सीक्वेंस बट डिफरेंट एपिजेनेटिक स्टेट। तो एपिजेनेटिक स्टेट बताया है, तो एपिजेनेटिक्स क्या होता है? इट्स ए मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन दैट कैन बी स्टेबली इनहेरिटेड थ्रू माइटोसिस and sometimes meiosis but can be established and released without changing the DNA sequence। मतलब एपिजेनेटिक्स का मतलब है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में चेंज आया है लेकिन कोई भी डीएनए सीक्वेंस लेवल पे चेंज नहीं हुआ है, मतलब ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन विजिबल वे में हुआ है लेकिन डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है। एपिजीनोम क्या होता है? द एपिजेनेटिक स्टेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन ए जीनोम एपिजीनोम होता है। नेक्स्ट टर्म है पैराम्यूटेशन। पैराम्यूटेशन समवॉट रिलेवेंट है एपिजेनेटिक्स टर्म के लिए। तो पैराम्यूटेशन में क्या होता है? अलेलिक इंटरेक्शन इन विच वन अलेल रेफर टू एज पैराम्यूटाजेनिक कॉज ए हेरिटेबल चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए होमोलॉगस पैराम्यूटेबल अलील, मतलब एक अलील दूसरे अलील को सब्स्टिट्यूट या उसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कि मल्टीपल जीन्स के लिए एग्जाम्पल। तो स्किन कलर इन रैबिट एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे डार्क ग्रे, चिंचिला, लाइट ग्रे, हिमालयन, अल्बिनो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप्स आपको मिलेगा। तो बेस्ड ऑन द जीनिक स्टेटस इसको ये जो पर्टिकुलर जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि कैपिटल है, वाइल्ड टाइप है तो वो अगूटी हो जाएगा। देन चिंचिला है, उसके साथ में हिमालय है और अल्बिनो है। अल्बिनो होता है कंप्लीटली वाइट, हिमालयन होता है वाइट होता है लेकिन उसमें फीट, नोज, ईयर, टेल ये सब ब्लैक होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में दिखेगा ये हिमालयन टाइप होगा। फिर चिंचिला होगा जिसमें ग्रे हेयर मिलेगा आपको, तो ये दोनों चिंचिला टाइप के हैं। और वाइल्ड टाइप जो ब्लैक है इसको अगूटी भी बोलते हैं, दैट इज़ ए वाइल्ड टाइप और डोमिनेंट टाइप। तो यहाँ पे अल्बिनो होगा रिसेसिव टाइप, मतलब यहाँ पे दोनों जो अलील्स है वो रिसेसिव फॉर्म में है और डोमिनेंट फॉर्म में अगूटी के दोनों अलील्स है। तो ये है मल्टीपल फैक्टर इन रैबिट, इन स्किन कलर ऑफ रैबिट। अब प्लांट ब्रीडिंग में आते हैं। द क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? वहाँ जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको वेरी ग्रेटर अमाउंट में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होना चाहिए, एंडेमिज्म होना चाहिए और थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, इको डेवलपमेंट क्या होता है? इको डेवलपमेंट इज इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। थर्ड क्वेश्चन, एन इकोलॉजिकल निश कैन बी डिफाइंड एज। निश और इकोलॉजिकल निश क्या होता है? द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लेस इन इट्स कम्युनिटी, मतलब निश वो होता है जो हमको एक जगह में कन्वीनियंट फीलिंग देता है। दैट मीन्स
अगर मेरे लिए कन्वीनियंट फीलिंग है तो मैं क्या करूँगी, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हूँ. इफ़ आई एम इंट्रोड्यूस्ड टू वन एलियन प्लेस और अननोन प्लेस मीन्स माई expression won't be good or my performance won't be good. It may take some time to adjust in that particular area. इसलिए निश क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म का एक कम्युनिटी में रोल को दिखाता है, दैट इज एक्ोलॉजिकल निश. फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली अकॉर्डेड क्रॉप विथ जीआई टैग, मतलब एक क्रॉप को जीआई टैग देने का बहुत ही अर्जेंसी है, दैट इज़ नथिंग बट तूर दाल ऑफ कलबुर्गी, ये कर्नाटका से जीआई टैग है. Colchicine alkaloid is obtained from glory lily, that is Colchicum autumnale. तो आपको ये उसका कॉमन नेम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. ग्लोरी लिली होता है कॉल्चिसिन अल्कलॉइड. तो जब कॉल्चिसिन का फंक्शन क्या होता है, ये क्रोमोसोम का डबलिंग होने को रोक देता है. तो ये एक और क्वेश्चन उठता है कि कॉल्चिसिन अपने खुद के ऊपर क्यों नहीं वर्क करता है, मतलब वेन एवर यू आर यूजिंग कॉल्चिसिन ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ये वर्क करता है, बट कॉल्चिसिन इफेक्ट इज नॉट ऑन इट्स सेल्फ, मतलब उस प्लांट पे नहीं होता है. क्यों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. दिस इज ए होमवर्क फॉर यू. Next question is, the red data book is the documentation of rare and endangered species of dash. तो यहाँ पे याद रखिए, रेड डेटा बुक प्लांट्स का रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. और अब हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग में 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. कम्युनिटी होता है असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया. तो देखिए, पॉपुलेशन होगा सेम स्पीशीज का एक ग्रुप और कम्युनिटी क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज का एक ग्रुप एक एरिया में. इकोसिस्टम होता है इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोडक्ट्स. तो इकोसिस्टम में स्पीशीज भी आ गए बहुत सारे, और उसके साथ उसके फिजिकल एनवायरमेंटल कंपोनेंट को भी हम कंसिडर करते हैं. इकोस्फीयर क्या होता है, पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इकोस्फीयर एक इकोसिस्टम्स का इंटरैक्शन है. नेक्स्ट हम मार्कर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे मैंने बस सिर्फ कई मार्कर्स को कवर किया है, तो जितने भी रेस्ट ऑफ द मार्कर्स वी विल आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सीरीज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स का डिफरेंसेस क्या होता है, मतलब हाउ दे आर यूजफुल इन डिफरेंट वेज. तो यहाँ पे हम बस एक उसका जो फुल फॉर्म जानने के इससे यहाँ पे मैंने दिया है. सदर्न ब्लॉट बेस्ड मार्कर एंड पीसीआर बेस्ड मार्कर्स होते हैं. सदर्न ब्लॉट बेस्ड मार्कर्स में मेन है restriction fragment length polymorphism, that is RFLP, then single strand conformation polymorphism RFLP, that is SSCP RFLP, then denaturing gradient gel electrophoresis or DGGE RFLP. Then PCR based markers, सदर्न ब्लॉट बेस्ड मार्कर्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, एंड पीसीआर बेस्ड मार्कर यहाँ पे पीसीआर यूज़ करते हैं, मे बी विद द हेल्प ऑफ 1 मार्कर और 2 मार्कर्स और मल्टीपल मार्कर्स. जब हम डोमिनेंट मार्कर्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम प्रेजेंट एंड एब्सेंस की बात करते हैं, एंड व्हेन वी गो फॉर कोडोमिनेंट तो यहाँ पे स्कोरिंग होता है. ओके, तो पीसीआर बेस्ड मार्कर्स में इंपॉर्टेंट है आरएपीडी, दैट इज रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एसटीएस दैट इज सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, स्कार दैट इज सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्प्लीफाइड रीजन, देन आरपीपीसीआर दैट इज रैंडम प्राइमर पीसीआर, एपीपीसीआर इज आर्बिट्ररी प्राइमर पीसीआर, OPPCR ऑलिगो प्राइमर पीसीआर, देन SSCP PCR मतलब सिंगल स्टैंड कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म. तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, SSCP सदर्न ब्लॉट और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर भी है, एज वेल एज ये PCR बेस्ड मार्कर भी है, तो इसको दोनों तरीके से भी यूज़ और डेवलप कर सकते हैं. देन स्मॉल ओलिगो DNA एनालिसिस और सोडा, DNA amplification fingerprinting is DAF, amplified fragment length polymorphism is AFLP, sequence related amplified polymorphism is SRAP, target region amplified polymorphism is TRAP, insertion deletion polymorphism is nothing but indels. नेक्स्ट आते हैं सीड टेक्नोलॉजी में. जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड कॉटन
75% होता है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन परसेंट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड 80% होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। दैट इज जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ ट्रू पोटैटो सीड्स इज 80%. In Acacia nilotica, bioscarification is used to overcome the dormancy. ठीक है, यहाँ पे डैश दिया है अकेशिया निलोटिका को। इन डैश बायोस्कैरिफिकेशन इज यूज्ड टू ओवरकम द डॉर्मेंसी, मतलब अकेशिया निलोटिका में। द मार्कर प्रोटीन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज साइटोक्रोम सी। द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कैस्टर रिलीज किया था 1968 में एंड द नेम वॉज GCH3। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट वन इज मॉर्फोजन क्या होता है। मॉर्फोजन होता है द थिंग विच कन्वेज पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू सेल्स विद इन द एम्ब्रियो, मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन को दिखाता है एक सेल में और एक एम्ब्रियो में, तो वो मॉर्फोजन कहलाता है। होमोलॉगस जीन्स, जीन्स दैट हैव सिमिलर सीक्वेंस ड्यू टू कॉमन डिसेंट होता है होमोलॉगस जीन्स। बायोजेनिक बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या होता है। कंट्रोल्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू मसल सेल टाइप्स, मतलब मेनली ये एनिमल्स में दिखता है। हैव बीन शोन टू एग्जिस्ट इन ऑल वर्टेब्रेट्स, ड्रोसोफिला एंड सी एलिगेंस। फंक्शंस एज अ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर, ये फंक्शन 3 है मेनली, हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन ऑफ मायोजेनिक मसल। नेक्स्ट है शॉटगन क्लोनिंग डिफर्स फ्रॉम द क्लोन बाय क्लोन मेथड, कैसे डिफर होता है शॉटगन क्लोनिंग क्लोन बाय क्लोन से। द लोकेशन ऑफ द क्लोन बीइंग सीक्वेंस्ड इज नोन रिलेटिव टू अदर क्लोन्स विद इन द जीनोमिक लाइब्रेरी इन शॉटगन क्लोनिंग। जीन डुप्लीकेशन होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब हम आते हैं इकोनॉमिक बॉटनी में। इकोनॉमिक बॉटनी में मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक कवर किया है आज, वो है वीट का कॉम्पोजिशन। तो वीट में वाटर 13% मिलेगा आपको, प्रोटीन 11.5%, फैट 2%। मतलब अगर आप राइस से कंपेयर करेंगे तो फैट कंटेंट वीट में कम रहेगा और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट 70% होता है, फाइबर 2%, ऐश 1.5%। ये सब ग्रेन में कॉम्पोजिशन है। उसी के साथ में फ्लोर में अगर आप प्रोटीन की बात करें तो 10% प्रोटीन होता है, फैट 1%, कार्बोहाइड्रेट 76%, ऐश 0.3 एंड फाइबर 0.3। अब देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। द फर्स्ट कैरेक्टर इज नंबर ऑफ डिविजन्स। माइटोसिस में 1 डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 होता है। नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड माइटोसिस में 2 होगा एंड मियोसिस में 4 होगा। हियर टेट्राड दिया है ब्रैकेट में, लेकिन ये गलत है, ठीक है। टेट्राड कंडीशन तब मिलता है जब सेल डिवाइड होते रहता है, तब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका पोलन ग्रेन का कंडीशन आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको टेट्राड देखने के लिए मिलता है। क्रोमोसोम सेट्स 1n-1n होगा, 2n-2n माइटोसिस में, और मियोसिस में 1n-2n-1n होगा। पर्पस क्या है माइटोसिस का, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। देन मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रोड्यूसिंग स्पोर्स एट स्टार्ट गेमेटोफाइटिक जनरेशन और प्रोड्यूसर सेक्स सेल्स में भी गेमीट्स डायरेक्टली इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। साइट कहाँ होता है माइटोसिस का, इन प्लांट्स, एपिकल एंड रूट मेरिस्टेम्स एंड वैस्कुलर चेम्बर। मियोसिस में होता है, क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। कमिंग टू सेल डिवीजन फेज, प्रोफेज 1, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा या क्रोमेटिड, और मियोसिस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट लाइक क्रोमोसोम पेयर। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम पेयर्ड क्रोमेटिड्स लाइन अप एट द इक्वेटोरियल प्लेट, और मियोसिस में पेयर्ड क्रोमोसोम और 4 क्रोमेटिड्स लाइन अप एट इक्वेटोरियल प्लेट। एनाफेज 1 में क्या होगा, क्रोमेटिड से सेपरेट, और मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेटली एंड क्रोमेटिड से स्टे टुगेदर। टेलोफेज माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म्ड, और मियोसिस में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स फॉर्म्ड, ईच विथ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड क्रोमेटिड्स। अब देखते हैं मियोसिस 2 में
या M2 जनरेशन में। M2 जनरेशन आपको माइटोसिस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली मियोसिस में मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोफेस होता है वेयर क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, क्रोमैटिड्स कंडेंस्ड एंड डिस्टिंक्ट। मेटाफेज 2 में क्या होगा, पेयर्ड क्रोमैटिड्स एट इक्वेटोरियल प्लेट। देन एनाफेज 2 सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड टेलोफेज 2 वेयर फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स ईच हैप्लॉइड। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा, एंड ऑफ द माइटोसिस आपको 2n प्रोजनी मिलेगा और एंड ऑफ द मियोसिस आपको n प्रोजनी मिलेगा। तो हम डायग्राम में आज डिस्कस करते हैं फिश टेक्नोलॉजी के बारे में। फिश टेक्नोलॉजी होता है फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है फिश को कैरी आउट करने के लिए। तो फिश हम क्यों यूज़ करते हैं, तो एक डिफरेंट और पर्टिकुलर सेगमेंट क्रोमोसोम पे आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करके इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप है, फिक्सेशन, हाइब्रिडाइजेशन, वॉशिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे अपना सैंपल को हम स्लाइड पे रखेंगे, 4% पैराफॉर्मल्डिहाइड से उसको ट्रीट करेंगे तो ये होगा, और उसको अच्छे से वॉश करके ट्रीट करके रखेंगे स्लाइड ऊपर से डाल के, माइक्रो स्लाइड, तो उसको बोलेंगे फिक्सेशन। देन लेबल्ड प्रोब, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा प्रोब के साथ, फिर वॉशिंग होगा वॉशिंग बफर के साथ, तो जो भी विदाउट बाइंडिंग प्रोब है वो सब वॉश आउट हो जाए और कन्फ्यूजन मिट जाए। उसके साथ में विजुअलाइजेशन विथ एपीफ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एट व्हाट पोजीशन द प्रोब इज बाइंडिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल ब्लैक पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरल एबरेशंस को कवर करने जा रही हूँ। जैसे आप जानते हैं, अगर क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में बात करें, देर आर 2 टाइप्स, वन इज न्यूमेरिकल एबरेशन एंड वन इज स्ट्रक्चरल एबरेशन। तो स्ट्रक्चरल एबरेशन में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेक्स होते हैं, जैसे कि 1 ब्रेक, 2 ब्रेक एंड टी ब्रेक। 1 ब्रेक क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनल डिलीशन होता है। 2 ब्रेक में क्या होता है, ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होता है, और एक तरीका और है ऑन सेम क्रोमोसोम। तो जहाँ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे होता है वहाँ पे सेंट्रल फ्यूजन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। सेंट्रल फ्यूजन को रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। तो ये आपको होमवर्क है कि जाके देखिए रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है। देन इन द 2 ब्रेक्स ओनली ऑन सेम क्रोमोसोम, यहाँ पे ऑन सेम क्रोमोसोम आर्म एंड ऑन अपोजिट क्रोमोसोम आर्म। तो सेम क्रोमोसोम आर्म में क्या होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन होगा, एंड ऑन ऑपोजिट क्रोमोसोम आर्म में रिंग क्रोमोसोम और पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन होगा। जब 3 ब्रेक्स की बात करते हैं ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो इंसर्शन से हम 3 ब्रेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में आएंगे, जैसे आप जानते हैं कि ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, मोनोजोमी, अलिजोमी, ये सब कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप बेसिस में जाएंगे तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस बेसिकली 4 टाइप का होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जीके में देखेंगे, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ओनली ऑन वन साइड, बिकॉज जब भी हम पौधे को डार्क में रखेंगे तो वो लाइट की तरफ अपने आप को बेंड करेगा। तो इसके लिए रीजन क्या है, ऑक्सीजन अक्यूमुलेट्स टुवर्ड्स डार्कर साइड टू इंड्यूस ग्रेटर सेल एलोंगेशन। जीके को कंटिन्यू करते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सॉइल हेल्थ कार्ड डे भी एक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको 19 फरवरी हर साल सेलिब्रेट करते हैं। द स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू इश्यू SHCs टू ऑल फार्मर्स इन द कंट्री। SHC होता है सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। This provides information to farmers on the nutrient status of their soil, along with recommendations on appropriate dosage of nutrients to be applied for
improving soil health and its fertility. Nutrient deficiency in India is the order of 95, 94, 48, 25, 41, 20, 14, 8 and 6% for N, P, K, S, Z, N, B, Fe, Mn and Cu respectively. Nutrient use efficiency present is low range from 30 to 50% nitrogen, 15 to 20% phosphorus and 60 to 70% potassium along with 8 to 10% sulfur and 1 to 2% micronutrients. Government is also implementing nutrient-based subsidy scheme for promoting customized and fortified fertilizers for balanced use of fertilizers. The additional subsidy on boron and zinc has been provided as 300 and 500 per tons respectively. As of now, 21 fertilizers have been brought under the NBS scheme. सो फ्रेंड्स थैंक यू। यहाँ पे लास्ट स्लाइड में मैंने सम ऑफ द गार्डन पेस्ट्स को एनलिस्ट किया है, जैसे कि एफिड, आर्मी वर्म, देन asparagus beetle, cabbage looper, cabbage worm, corn endosperm, and corn earworm, cucumber beetle, cutworm, earworm, European corn borer, flea beetle, grasshopper, leafhopper, leaf miner, Mexican bean beetle, potato beetle, psyllid, root maggots, slugs and snails, sawbug and pillbug, along with that spider mites, squash bugs, thrips, tomato hornworm and whiteflies ये सब some of the important garden pests है. So friends, thank you for watching. If you have any doubt, put it in the comment section. Always keep on sharing, smiling, commenting. Thanks once again.